Hello dear students, today multiple choice questions and name of the topic applications of the definite integral. So here all these questions are important for CET and the JEE exams and also other competitive exams. Choose the correct option from the given alternatives. Your first question is the area bounded by the region 1 less or equal x less or equal 5 and 2 less or equal y less or equal to 5 is. Options are A 12 square units, B 8 square units, C 25 square units and D 32 square units. Here we have to find the area bounded by the region 1 is less or equal x is less or equal to 5 and 2 is less or equal to y is less or equal to 5. So first we draw a figure for the understanding. First we draw a figure, then anyone can understand easily. So first we plot the quadrant axis. Here it is x and x dash, here y axis, that is y and y dash. This is the origin 0 0. Here 1 is less or equal to x, we plot the line x equal to 1 and x is less or equal to 5, that is x equal to 5, another line. So x equal to 1, it is perpendicular to the x-axis and parallel to the y-axis. Here x equal to 5, it is perpendicular to the x-axis and parallel to the y-axis. According to the another inequality, here it is given that 2 less or equal to y, that is y equal to 2, this line, which is perpendicular to the y-axis and parallel to the x-axis, and y is less or equal to 5. So this line represents y equal to 5, this one, and this is perpendicular to the y-axis and parallel to the x-axis. So from these four lines means here x equal to 1, x equal to 5, y equal to 2 and y equal to 5. From these four lines we get a shaded region or bounded region, this one which is shaded here. So we need to find the area of the shaded region. So it is a multiple choice question. Here we see that this length, because these two lines are perpendicular to the x-axis, then this length means distance between x equal to 5 and x equal to 1 is 5 minus 1, that is 4 units. Also distance between y equal to 2 and y equal to 5, here it is 5 minus 2, that is 3 units. And this diagram is a rectangle. So area of the rectangle you can find easily by multiplying length and breadth. So we write here area of the shaded portion equal to length into breadth, that is 4 into 3. Here it is 4 and here it is 3. So 4 multiplied by 3, that is 12 square units. So we check the option out of these four options A, B, C, D. We see that here option A, that is option A, 12 square units. So this is a very nice question. You can solve easily this question. Here it is a question, that one is very important for the CET and JEE exams. Only two inequalities are given, so we have to find the area of the bounded by these two inequalities. So we get here area of the shaded portion by multiplication of 4 into 3, that is 12 square units, because this part is, or this shaded portion is a rectangular region and area of rectangle is length into breadth. We multiply here 4 into 3, that is 12 square units. Easily you can find without any problem, or in short tricks without trying the figure. For understanding you can draw the figure. For the fastest answer, what is the difference between these two limits? 5 minus 1, that is 4, and here it is 5 minus 2 equal to 3. We multiply these two limits, 4 into 3, which is 12, that is option A, 12 square units. You can get answer within 10 seconds. Now go on the next question, question number 2.
the area of the region enclosed by the curve y equal to 1 upon x and the lines x equal to e and x equals e square is. So here a question, we have to find the area of the region enclosed by the curve y equal to 1 upon x. So without drawing the figure, you can find the area of this region because it is given that y equal to 1 upon x and two values of x equal to e and x equal to e square. Your options are A 1 square units, B 1 by 2 square units, C 3 upon 2 square units and D 5 upon 2 square units. So how will you find the area of these two limits and a curve? So using the formula area enclosed, the curve and these two x equal to e and x equal to e square means these two lines. So we write here area equal to integral of, what is the lower limit here, x equal to e and x equal to e square. So this is the lower, this is the upper. So we write here integral of e to e square y dx because it has a formula x equal to a and x equal to b, y dx here. So area equal to integral e to e square y dx. We get here integral of e to e square, value of y from the given curve y equal to 1 upon x. So we write here integral of 1 upon x dx and limits e to e square. Always attention, integral of e to e square 1 upon x dx. So integral of 1 upon x is log of x or log of mod of x. So anyone you can write here to the limit e to e square. Now using the limit, so this will be log of e square minus log of e, which is equal to log e square is 2 log e minus log e. 2 log e minus log e becomes log e, but log e equal to 1. Therefore, option A 1 square units is correct answer. A 1 square units. In case if you have any doubt for the areas of the studied portion or applications of definite integral, word problems or other questions, you can ask in the comment section. Here question number 2. See once again the area of the region enclosed by the curve y equal to 1 upon x and the lines x equal to e and x equal to e square. In case किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका डायग्राम प्लॉट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट एक्सेस को प्लॉट करेंगे और क्वाड्रेंट एक्सेस को प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का एक ग्राफ, एक कर्व प्लॉट करेंगे। तो कर्व प्लॉट होने के बाद x इक्वल टू ई एंड x इक्वल टू ई स्क्वायर, ऐसी दीज टू लाइंस x इक्वल टू ई, x इक्वल टू ई स्क्वायर ऐसा ले सकते हैं बिकॉज e and e square both are positive। तो ये ओनली फर्स्ट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये भी बोल सकते हैं कि ये ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रीजन इक्वल टू ई टू ई स्क्वायर। देखो इंटीग्रल ई टू ई स्क्वायर ये हमारी लिमिट हो जाती है जो भी यहाँ पर वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं, एंड व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स सो वी अप्लाई हियर वाई डी एक्स। इन केस सपोज कर लो कि अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1 अपॉन वाई होता और यहाँ पर y इक्वल टू ई एंड y इक्वल टू ई स्क्वायर होता तो हम लोग क्या लिखते, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल ई टू ई स्क्वायर एक्स डी वाई। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो IIT एंड जेई इस लेवल का क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड किया गया है जस्ट इन द प्रीवियस वीडियो। यू कैन चेक दैट वीडियो। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग दूसरे फार्मूले में जाएंगे। समटाइम्स हमारा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई और समटाइम्स इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स विद द गिवन लिमिट्स, और कभी कभी ये लिमिट्स नहीं होती हैं गिवन। अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो भी दिया रहेगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करके लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसका एरिया एक बार फाइंड करते हैं। एरिया यहाँ पर, एरिया का मतलब है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू लाइंस एंड कर्व।
integral of e to e square y dx, value of y is 1 upon x. So we write here integral e to e square 1 upon x dx equal to log of x, because integral of 1 upon x dx is log of mod of x. So e to e square. Now put the limit. First we put the upper limit. So log of e square minus log of e. तो वैसे ही हो गया 2 log e माइनस log e, तो चाहे यहाँ पर कर दें 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 यूनिट. तो यहाँ पर या 2 log e माइनस 1 log e दैट इज log e, तो log e का वैल्यू होता है 1. तो ऑप्शन ए 1 स्क्वायर यूनिट इज करेक्ट, जो कि यहाँ पर 1 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है. तो इस ऑप्शन को इजिली हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. Now see the next question, question number third. Here it is given that third question में हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, the area bounded by the curve y equal to x cube, the x axis and the lines x equal to -2 and x equal to 1 is. तो यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स क्यूब. एक इक्वेशन ऑफ कर्व है जो कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है. एक्स एक्सिस का मीनिंग हो गया यहाँ पर ओनली एक्स एक्सिस पर ही लेना है, और x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू -2 जो कि हमारा नेगेटिव x क्वाड्रेंट की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ आएगा इधर x इक्वल टू -2, और x इक्वल टू 1 यहाँ पर आएगा. और हमारे पास एक है इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब. तो ये है अपना कैसा है कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है. तो हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस के लिए डायग्राम प्लॉट करेंगे जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे या समझ में नहीं आ रहे हैं. और जो क्वेश्चन अगर हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है तो उनके लिए हमें डायग्राम प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर है x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 1, और ऑप्शंस क्या क्या हैं, a -9 स्क्वायर यूनिट्स. तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि अगर -9 स्क्वायर यूनिट्स किसी भी ऑप्शन में दिया है दैट ऑप्शन विल बी कैंसल्ड बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ऑप्शन पे हमें फोकस ही नहीं करना है. b -15/4 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये ऑप्शन पर भी फोकस नहीं करना. तो बचे ओनली c एंड d. मीन्स 15/4 स्क्वायर यूनिट्स या 17/4 स्क्वायर यूनिट्स में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, c और d. तो आइए अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट. सोल्यूशन, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रल -2 to 1. देखो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग लोअर लिमिट में रखेंगे, और जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम लोग अपर लिमिट में रखेंगे. तो इंटीग्रल -2 to 1 y into dx. But value of y is x cube from the given question. So we write here integral -2 to 1 x cube into dx. Now integrate it. So integral of x cube is x to the power 4 upon 4. अब यहाँ पर है लिमिट -2 to 1. तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट. तो हियर इट इज 1/4 upon 4. और कहाँ पर पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ x. तो 1/4 upon 4 माइनस लोअर लिमिट -2/4 अपॉन 4. तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/4 इज 1. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मॉडुलस के अंदर क्लोज कर देते हैं कि ये पॉजिटिव है तो भी मॉडुलस काम करेगा, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा. क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि ऑलवेज वी शुड सेलेक्ट पॉजिटिव आंसर. तो 1/4 माइनस 16/4. नाउ 4 4 जा 16 हो गया, 1/4 -4. तो इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -15/4. तो मॉडुलस है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव आंसर लेंगे 15/4. तो ये 15/4 कहाँ पर है, ऑप्शन सी के लिए. तो देयरफॉर ऑप्शन सी 15/4 स्क्वायर यूनिट्स. तो इस तरह से हम लोग विदाउट प्लॉटिंग द फिगर, विदाउट ड्राइंग द फिगर सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हमें एवरी क्वेश्चन के लिए डायग्राम चाहिए. अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम विदाउट डायग्राम जेईई एंड सीईटी के क्वेश्चंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं एप्लीकेशंस ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, तो वहां पर हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4. तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. देखो देखकर ही लग रहा है कि इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला एंड लाइन y इक्वल टू 2x इज. योर ऑप्शंस आर, ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या ऑप्शंस हैं. ए
2/3 square units, B 1/3 square units, C 1/4 square units and D 3/4 square units. तो यहाँ पर एक तो ये दिया है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला और दूसरा दे दिया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ लाइन एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू पार्ट्स। तो आइए इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायग्राम भी प्लॉट कर दिया है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हियर इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वी प्लॉट द फिगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पर होगा, दैट इज 0 0 o 0 0, ये 0 0। और यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमने यहाँ पर इसका इक्वेशन लिख दिया। और ये जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है y इक्वल टू 2x। तो एक यहाँ पर देखो शेडेड रीजन यहाँ पर आ गया है, इसी शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए अब हमारे पास लिमिट्स नहीं थी, तो लिमिट्स को भी तो यूज करना ही पड़ेगा ना यहाँ पर, क्योंकि विदाउट लिमिट हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2x पुट करेंगे तो 2x होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा ओरली सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या मिला, अगर हम y इक्वल टू 2x यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो 4 4 गेट कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो उसको हम x को क्या करते हैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब उसमें करते हैं x कॉमन, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 होगा, तो इसके लिए यहाँ पर ओरिजिन पर ही आ रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है 0 0। व्हेन x इक्वल टू 1, अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो इसके लिए इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है ये 1 2, ये है 1 2, इसको यहाँ पर लिखना है। तो 0 0 एंड 1 2, ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला एंड द गिवन लाइन। ये बहुत जरूरी होता है फाइंड करना। ये अगर मान लो कि हमारा डायग्राम यहाँ पर सपोज कर लो कि लाइन यहाँ से पास होने वाली थी, कुछ दूसरा इक्वेशन होता तो वो बता देगा सॉल्व करने के बाद कि हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं यहाँ पर आएगा। ऐसा वो कन्फर्म करेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू होगी वो कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है, ये शेडेड पोर्शन मैंने बना दिया, कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 और यहाँ पर है 1 2। तो अभी हमें इसमें जो लिमिट यूज करनी है वो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। लेकिन इसका जो एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन या एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द गिवन लाइन, यू कैन से बोथ। देखो इसमें कैसा होता है कि ये है पैराबोला, तो ये पैराबोला जो देगा एरिया अंडर कर्व, इसके डाउनवर्ड जितने भी हैं पूरा एरिया दे देता है, लेकिन ये लाइन इसको यहाँ पर क्लोज कर देती है। तो लाइन बोलती है कि इसके ठीक ऊपर ही रहना, और ये कर्व बोलता है नहीं नीचे का एरिया, एक लाइन बोलती है ऊपर का एरिया। तो इनका जो कॉमन पोर्शन आता है ये एरिया हमें फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन और यू कैन से एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रल 0 टू 1, सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट इज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x। तो पूरे का हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ 4x। वी राइट हियर इंटीग्रल 0 टू 1 रूट ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू 1, सेम लिमिट है क्योंकि लाइन भी उसी पॉइंट पर कट जा रही है, y इक्वल टू 2x, तो यहाँ से y की वैल्यू 2x ले लिया dx। ये ध्यान देना है, अगर दो एक पैराबोला है और एक लाइन, तो दोनों में हमें हमेशा क्या करना होता है माइनस। तो ये लिमिट कैसे आई ये क्लियर हो गया, 0 0 एंड 1 2, वी शुड सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ x। ये हो गया 0 टू 1 रूट ऑफ 4x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर। देखो y स्क्वायर इज 4x, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x dx माइनस ये जो दूसरा पार्ट है ये लाइन के लिए लिया गया, लाइन से है, तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 2x dx। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो रूट ऑफ 4 तो इसका 2 होता है, बाहर कर दिया, और रूट x का इंटीग्रल x रेज टू 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2, लिमिट 0 टू 1।
सेकंड पार्ट है हमारा 2x dx, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1. नाउ 2 अपॉन 3 अपॉन 2, देखो 2 अपॉन 3 अपॉन 2, 2 गोज टू न्यूमरेटर, तो दिस विल बी 4 अपॉन 3, और यहाँ पर हो जाता है 1 क्यूब 1 रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 0 रेज टू 3 अपॉन 2, तो 1 माइनस 0 ही आने वाला है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रखें 1 और 0 का पावर कुछ भी रखें 0, तो ये हो गया 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0. अब जो सेकंड पार्ट है 2 गोइंग बाई 2, 2 2 गेट कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 0, तो हमारे पास ये मिलता है 4 अपॉन 3 माइनस 1, तो 4 अपॉन 3 माइनस 1, 3 1 जा 3, हियर 4 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स. अब हमें चलना चाहिए ऑप्शन की तरफ कि इसमें ऑप्शन जो गिवन है विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑप्शन की तरफ हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है कि ऑप्शन बी 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स के साथ राइट आंसर है, तो वी राइट हियर देयरफॉर ऑप्शन बी 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स. तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी को लिख सकते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. The area of the portion या area of the region bounded between the line x equal to 4 and the parabola y square equal to 16x is. Options are 128 upon 3 square units, B 108 upon 3 square units, C 118 upon 3 square units and D 218 upon 3 square units. ये सभी स्क्वायर यूनिट्स में ही हैं. तो 128 upon 3, 108 upon 3, 118 upon 3 and 218 upon 3. ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है. तो इसके लिए भी डायग्राम बना करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. शॉर्टकट तो अपने आप से भी बना सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट एक्सिस को प्लॉट करेंगे. यहाँ पर है ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0. अब इसके बाद हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x मीन्स वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, प्लॉट कर लिए, और लाइन है x इक्वल टू 4. अब हमें ये x इक्वल टू 4 की लाइन यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर 4, जैसे यहाँ 0 से लेंगे तो 1 2 3 4 यूनिट आ गया x इक्वल टू 4. ये तो हमें मिल गया. ओरिजिन यहाँ पर है 0 0. अब जो हमें एरिया फाइंड करनी है, ये हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करनी है, क्योंकि नहीं दिया है कि ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट या पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हमें पूरी एरिया फाइंड करनी है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड x इक्वल टू 4. तो भाई आइए सबसे पहले इनको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं फॉर द लिमिट्स. ये सॉल्व करने के लिए पुट x इक्वल टू 4 हियर. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 64. टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वी गेट y इक्वल टू प्लस माइनस 8. मीन्स व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू प्लस माइनस 8. तो यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये है 4,8. यहाँ पर मैंने लिखा है, और ये है 4,-8. तो ये पॉजिटिव है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4,8. ये ध्यान देना है 4,8, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, नोट कर सकते हो, और ये 4,-8. नाउ अब आते हैं एरिया की तरफ कि हाउ टू फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला एंड द गिवन लाइन x इक्वल टू 4. तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 रूट ऑफ 16x dx. यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो जितना पार्ट अपर है उतना ही लोअर है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर कर दिया है डबल, 2 टाइम्स, क्योंकि हम लोग जो लिमिट यूज करेंगे वो 0 0 यहाँ पर है और यहाँ 4,8, तो 0 to 4 वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4. तो इसके लिए आया यहाँ पर 0 to 4, क्योंकि एरिया अपर एंड लोअर दोनों इक्वल है, 2 पार्ट्स है, इसलिए यहाँ पर है डबल. तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 रूट ऑफ 16x. यहाँ से हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू रूट ऑफ 16x. तो 16 का स्क्वायर रूट तो हो गया 4, बाहर कर दिए, 2 इंटू 4 एंड इंटीग्रल ऑफ रूट x dx दैट इज x रेज टू 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 विथ लिमिट 0 to 4. अभी हो गया 2 इंटू 4 8, और ये 2 भी जंप टू न्यूमरेटर, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 16, 16 बाई 3.
हियर 4^3/2, तो 4^3/2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2³ दैट इज 8 और 0^3/2 दैट इज 0। तो 16/3 इंटू 8 माइनस 0 ये हमारा यहाँ पर आता है टर्म। अब इसके बाद यहाँ क्या करते हैं, तो 16/3 इंटू 8 माइनस 0, अब ये 16/3 इंटू 8 दैट इज 128। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व भी कर दिया कि 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर ऑप्शन ए में हमारे पास ये आंसर है यहाँ पर मौजूद, 128/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग अप्लीकेशंस ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर सीईटी एंड जेईई या एडवांस्ड में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एडवांस के क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हायर लेवल के रहेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पर अच्छी है तो हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और अगर अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आया है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम लोग जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, एडवांस के क्वेश्चंस, उनको अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हो। इसके लिए अभी से छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो, प्रैक्टिस करो, और तब जा करके कहीं अपना अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।